Good morning, students. We are again here to discuss the third part of class 6 science, and it is the 10th chapter from physics, that is motion and measurement of distance. This is the last chapter of April syllabus, students. So here we are going to start this chapter motion and its measurement of distance. So before discussing, we have to know that some important points. For example, movement. Students, do you know what is movement? Yes, the act the act of changing position from one place to another is called movement. Movement occurs throughout the universe from huge planets. मूवमेंट क्या होता है? एक जैसे दूसरी जगह जाने को ही बोलते हैं, और मूवमेंट पूरे यूनिवर्स में होते रहता है. एग्जाम्पल के तौर पर ले तो बड़े से बड़ा प्लैनेट भी वो मूव करता है, और छोटा से छोटा पार्टिकल्स भी, मैटर भी मूव करता है. मूवमेंट हैज़ ऑलवेज बीन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ. हमारे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मूवमेंट भी है. वी वॉच पीपल ट्रैवलिंग, वॉकिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वी यूज प्रेफरली टू वॉक by cycles and train, movement of ships, and many more things. And the famous statement made by Galileo about the state of motion. Galileo said everything is the physical world. जो भी इस फिजिकल दुनिया में दिख रहा है हमें, वो सब मोशन में. फ्रॉम द टीनिएस्ट पार्टिकल, सबसे छोटे से छोटे कण से लेकर के एटम्स से और बड़े गैलेक्सीज तक स्टार के, ये सब मूवमेंट में. नाउ द रिलेटेड सम टॉपिक्स आर here rest and motion. what do you mean by rest? Rest means a body is said to be at rest. एक बॉडी को, एक वस्तु को तभी हम रेस्ट में बोलेंगे जब वो पूरी तरह से रेस्ट में हो. when it does not change its position, जब वो अपना पोजीशन नहीं बदल रहा तो वो रेस्ट में. विथ रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग ऑब्जेक्ट, वो अपने अगल बगल के ऑब्जेक्ट के तुलना में, अगर किसी ऑब्जेक्ट के अगर बगल में वो 1 मीटर की दूरी पे है और 1 घंटे के बाद भी इसका डिस्टेंस वो 1 मीटर ही कहलाता है, इसका मतलब यह कोई अपना पोजीशन नहीं चेंज करता वो ऑब्जेक्ट, और तब बोल सकते हैं कि द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट. इन अदर वर्ड्स, इफ द पोजीशन of a body does not change with respect to any fixed point and its surrounding, then it is said to be in rest. In order to classify objects at rest, in motion, or choose some convenient fixed point in the immediate surrounding of the body, this fixed point is known as reference point. हमें किसी भी चीज़ के लिए कोई भी मैटर डिसाइड करने की, आइदर वो कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो और इन मोशन में हो, हमें अपने आसानी के लिए किसी फिक्स पॉइंट को लेना चाहिए इमीडिएट सराउंडिंग में. जैसे तुरंत ही हमें कॉल करें कोई इलेक्ट्रिक पोल, कोई प्लांट या कोई ट्री, जिसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट के तौर पर रख सकते हैं. दिस रेफरेंस पॉइंट बी एनी अदर ऑब्जेक्ट और बॉडी. हेयर आर द टाइप्स ऑफ मोशन. First, translatory motion. It is the motion in which all the particles of the body move through the same distance. एक ऐसा मोशन है जिसमें सारे पार्टिकल्स जो है किसी भी बॉडी के, वो मूव करते हैं सेम डिस्टेंस से, सेम टाइम इंटरवल में. इस कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन. और ट्रांसलेटरी मोशन भी दो तरह के होते हैं, रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर. रेक्टिलिनियर वह मोशन जो कि स्ट्रेट लाइन में फॉलो करता है, इसको बोलते हैं rectilinear motion. For example, vehicles moving on a straight road, march past of soldiers, falling off a stone, pulling out of drawer, firing of a bullet from a gun, and a girl sliding down a slope. ये सब example है rectilinear motion का. Here, this is the example of rectilinear motion. The boy sliding and the ball is rolling from the mountain. All these are the example of rectilinear motion. बट नाउ व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ कर्व, जब कोई बॉडी वस्तु किसी कर्व से मूव करता है, इट मीन्स ये किसी मोड़ से जाता है, देन इट इज कॉल्ड कर्विलिनियर मोशन. द नेम इज क्लियर फ्रॉम द वर्ड कर्व, कर्विलिनियर मोशन. अ कार taking a curve or turn on a and a ball or a stone throw at an angle are examples of curvilinear motion. Here is in picture you can see what the picture is going to demonstrate, curvilinear motion. Now the another type of motion is circular motion. The body moving along a circular path is said to have a circular motion. In a circular motion, the distance of the moving body remains the same. ये सर्कुलर मोशन में जो डिस्टेंस है मूविंग बॉडी का वो सेम रहता है फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट. द बॉडी मूविंग चेंजेस इट्स पोजीशन ड्यूरिंग द मोशन. व्हेन अ बॉडी मूव्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, जब बॉडी मूव करता है फिक्स्ड एक्सिस से विदाउट चेंजिंग इट्स पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर,
सच मोशन इज कॉल्ड अ रोटेटरी मोशन। फॉर एग्जाम्पल, ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है फैन के ब्लेड्स, ये जो मून है अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में है, स्पिनिंग टॉप है, बॉल है, ये पॉट है, ये सब सर्कुलर मोशन शो कर रहा है। द मूवमेंट ऑफ द ब्लेड्स ऑफ द फैन, तो ये मूवमेंट ऑफ द ब्लेड ऑफ अ फैन है ये, और द हैंड्स ऑफ द क्लॉक है, ये मूवमेंट हो रहा है, लेकिन इनका ये जो सर्कुलर मोशन है वो किसी एक पॉइंट, फिक्स पॉइंट से अटैच है, जिसको एक्सिस बोल सकते हैं, और इस तरह से हम लोग बोलेंगे कि ये रोटेटरी मोशन भी कर रहा है। अब आता है ऑस्किलेटरी मोशन में। अ बॉडी एज अ होल, एक बॉडी पूरा होल में वो मूव करता है टू एंड फ्रो, यानी बैक एंड फ्रंट अबाउट अ फिक्स पोजीशन, वो एक मीन फिक्स पोजीशन से आगे और पीछे सेम पाथ पे मूव करता है। व्हेन वी टाई ए स्टोन टू वन एंड ऑफ अ थ्रेड एंड गिव अ जेंटल पुश, जब हम किसी पत्थर को एक धागे से बांध देते हैं और उसको एक हल्का सा पुश देते हैं, तो वो पत्थर अपने मीन पोजीशन से थोड़ा सा आगे जाता है, फिर मीन पोजीशन पे आता है, फिर मीन पोजीशन पे से बैक पे आता है। फॉर एग्जांपल, हम लोग इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि जैसे इस बॉल को हम लोग पुश करते ही आगे जाता है, फिर अपने मेन पोजीशन पे आता है, फिर बैक आता है, फिर आगे जाता है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, इतना ही बैक साइड में जाता है। स्विंग में भी हम लोग देख सकते हैं। ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ ऑस्किलेटरी मोशन। Now periodic motion, when a body repeats its motion, स्टूडेंट्स ये पीरियोडिक मोशन है जिसमें कि जब बॉडी है वो रिपीट्स करता है मोशन को आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, यानी एक फिक्स पीरियड में वो मोशन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग मोशन ऑफ, बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जांपल, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, ये जो मोशन ऑफ द अर्थ होता है, अर्थ का जो मोशन होता है सूरज के चारों तरफ, पेंडुलम मूव करता है, ब्रांच ऑफ द ट्री मूविंग टू एंड फ्रो, मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग, स्ट्रिंग ऑफ गिटार और ड्रम बीइंग प्लेड, ये सब एग्जांपल हैं स्टूडेंट्स पीरियोडिक मोशन के। अब आता है नॉन पीरियोडिक मोशन। तो नेम इज क्लियर दैट नॉन पीरियोडिक मोशन, मतलब ये मोशन तो होता है लेकिन इसका फिक्स्ड कोई पीरियड ऑफ टाइम इंटरवल नहीं होता है। व्हेन अ बॉडी रिपीट्स इस मोशन, जब इसका बॉडी, कोई बॉडी रिपीट्स करता है अपने मोशन को बट नॉट इन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, इसका टाइम इंटरवल फिक्स नहीं रहता, इट इज कॉल्ड अ नॉन पीरियोडिक मोशन। मोशन ऑफ टाइड्स इन द सी, समुद्र में ज्वार भाटाएं उठती हैं, एंड फास्ट एंड स्लो रनिंग ऑफ अ प्ले इन द फील्ड आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन पीरियोडिक मोशन। Combination of motions means, have you observed the motion of a ball on the ground? Here the ball is rolling on the ground. It is rotation as well as moving forward on the ground. इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं बॉल तो रोटेट कर रहा है बट ये एक ग्राउंड में स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो इसलिए रेक्टिलिनियर बोलेंगे, एज रोटेशनल मोशन भी बोल सकते हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग इसलिए बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट दो तीन कॉम्बाइन करके मोशन वो शो कर रहा है। सिमिलरली द अर्थ मूव्स two kinds of motion at the same time. It revolves around the sun and also rotates on its axis at the same time. Can you think of other examples where objects undergo combination? Measurement. Measurement is not only important in everyday life, it is in fact a vital part of the activities of the scientist. ये हमारे लिए उतना important नहीं है क्योंकि हम लोग इसको नज़रअंदाज भी करते हैं डे टू डे लाइफ में, बट साइंटिफिक नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेजरमेंट मीन्स क्या होता है? द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी, जब हम किसी क्वांटिटी को नहीं जानते हैं, जिस दो क्वांटिटीज को, तो उनको आपस में कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल, लेंथ हो, आइदर मास, आइदर टाइम हो, एटसेट्रा, विथ अ स्टैंडर्ड यूनिट, एक फिक्स्ड यूनिट जो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल हो, उस यूनिट से अगर हम दो क्वांटिटीज़ को मेज़र करते हैं, वो क्वांटिटीज़ के बारे में हम लोग जानते नहीं, तब उस क्वांटिटी का मेजरिंग को मेजरमेंट कहलाता है। दिस स्टैंडर्ड यूनिट कैन बी called by a name. For example, if the teachers and the students in a school decide to call all weights of and measures by special names like tikka and billing, this will be acceptable only if everyone in the school understand what these names represent. इट मीन्स ये किसी एक जगह के लिए फिक्स कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि स्टूडेंट्स और टीचर्स का वेट अगर स्कूल में होना है तो स्टूडेंट्स का वेट को हम लोग टिक्का बोल सकते हैं एंड टीचर्स के वेट को हम लोग बिलिंग बोल सकते हैं। तो ये हमारे लिए बस उसी वक्त के लिए, उसी प्लेस के लिए एक्सेप्टेबल होगा जहाँ पे हम लोग सबको जान रहे हैं कि किस के लिए किस रेफरेंस को हम लोग डिनोट कर रहे हैं। बट अदर इन द यूनिवर्सल वर्ल्ड हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते। इट इज़ देयरफॉर बेटर एंड इम्पॉर्टेंट टू हैव ए यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड। इसीलिए साइंटिस्ट ने ये बोला कि हम लोग को दुनिया भर में एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड के लिए एक ऐसे यूनिट का
खोज करना होगा थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो पूरे वर्ल्ड में सेम चले। स्टैंडर्ड यूनिट whenever its name must mean the name of anyone who uses it, जब भी हम कभी इसका नाम लें तो हाँ सामने वाला भी उस नेम को जानता हो, रिकॉग्नाइज हो। दिस हेल्प्स द इन यूनिफॉर्म मेजरमेंट एट all places and avoid unnecessarily confusion and conversion. Okay students, that's all for today. We will meet in the next part of this chapter. Okay, thank you.